Okay, so our today agendas is we will discuss about what is data and database, what is RDBMS, how it works, history of RDBMS, why RDBMS is important, what is table, column, domain, row, record, field. So all the things which is the basic keys of database management system will be we will go through today. So when we talk about database, then the first thing which comes in our mind is what is data. Data could be any information, all right? That information which is simply can be a facts and relate to an object. What does that mean? The data can be facts and related to any object. Does anybody has any idea? Ma'am, it means data has some figures or any information related to which we can conclude anything. Yes, like information could be anything. Like if I am holding a marker in my hand at the moment, and I am writing something on on whiteboard, then the information which is written on the whiteboard is important. And but the marker is made by which brand and which color is not of important for students at that time. So its main information could be anything, but the thing is that what is useful and what is not useful for us at that moment. um, like if I will talk about name, place, date of birth, contact number, then this is all the information or data which is related to you or which relate to me, and that could be important for anyone. But at that, but what is my dress code, which I'm used to wear, which I am used to eat, is not important for others, because that is unnecessary information. But we can't say that isn't a data. Data could be any type of information that is particularly related to any object. So if we are clear about the data, then and the next step is about database. What is database? Database is basically collection of related data that is stored in a central location or in multiple location. Like आपके पास I'm going to explain it in Urdu as well, so that the students who feel not comfortable with English, they can also understand what the mean of me. तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती चलूँ कि आपके पास जो डेटा होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। कुछ आपके लिए यूजफुल होती हैं, कुछ आपके लिए यूजफुल नहीं होती हैं। जैसा कि इस टाइम मैं आपसे कहूँ कि क्या टाइम हुआ होगा यूएसए में, तो डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट हम ये तो नहीं कह सकते कि वो डेटा नहीं है या वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन और डेटा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा आपसे आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा नहीं। तो वो पर्टिकुलर डेटा जो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा होता है, हम उसको डेटा कहते हैं, और बाकी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? ये सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा की होती है। लाइक कि आपके पास अगर सारी इंफॉर्मेशन या सारा डेटा जो है, इफ इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन सम प्लेस, और इफ इट वी हैव पुट इट in somewhere and we don't want to manipulate it, then definitely there should be a system through which we can manipulate or retrieve it. तो उसको आप डेटाबेस कहते हैं। यानी कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके एक जगह पर रख लेते हैं, तो वो कहाँ रखी हुई है, किस तरह से रखी हुई है, ये आपके पास वो जो है वो डेटाबेस और उसकी टाइप्स पे डिपेंड करता है। तो इन अदर वर्ड्स, you are just storing all the data either in central location or in multiple location. तो वो आपके पास that is called database. अब database जो होती है वो आपके पास वो hierarchy की फॉर्म में भी होती है, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन
आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि लाइक अगर आप एक टेबल ड्रॉ करते हैं, आप उसमें फील्ड्स ड्रॉ करते हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो डेटा हायरार्की कहलाती है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा? फिर आपको डेटा का पता चल गया, यू हैव कम टू नो अबाउट डेटाबेस, देन व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली that software who will help you to create, store, maintain and access the database files. लाइक कि आपके पास एक डेटा है, उसको आपने एक जगह पे रख दिया, वो डेटाबेस बन गई आपके पास लोकेशन। अब उस डेटाबेस से आपने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी करना है, उसको मॉडिफाई भी करना है और उसको मेंटेन भी रखना है, तो वो आपके पास डेफिनेटली यू नीड अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट, तो उसको आप डीबीएमएस कहते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और वो उसका क्या काम होता है, ये आपके डेटाबेस को इट ट्राई टू मेक इट मोर एफिशिएंट, ताकि आपकी डेटाबेस जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको बेसिकली डीबीएमएस की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, आपके पास डीबीएमएस की जरूरत इसलिए होती है कि लाइक आपके पास, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, let me find a whiteboard for you people if I will succeed. मैम Yes. मैम कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं एंटर होने की, वो मेरे ख्याल आपकी रिक्वेस्ट नहीं हो रही उन्हें ऐड करने की। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए मैं कहती होती हूँ कि यू ऑल शुड ट्राई टू ज्वाइन द क्लास इन फर्स्ट 5 minutes, अदरवाइज it would be hard for me and you to join them between the class. Okay, like if I will talk about, like you have a room, okay, in that room you have to place boxes of glasses. अब आपने जब उसमें क्लासेस के बॉक्सेस रखने हैं ग्लासेस को, तो डेफिनेटली यू विल कीप इट इन माइंड, इफ इट विल बी ब्रेक डाउन देन डेफिनेटली इट इज अननेसेसरी फॉर यू पीपल टू हो यू आर पुटिंग दैट। ओके, आपके लिए वो जो है वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको गलत तरीके से रखा। आपको डेटा को इस तरीके से रखना होता है कि वो आपके लिए यूजफुल भी हो और आप उसको इजीली एक्सेस भी कर सकें। लाइक इफ आई एम पुटिंग the boxes like this and in some hole like this, and then it might be possible that this will be fall down. If that will be fall down, then it's mean कि आपके पास जो डेटा को आपने अरेंज किया वो आपने रॉन्ग मेथड से किया। हमारे पास दूसरा मेथड जो डेटा को अरेंज करने का वो ये हो सकते हैं कि लाइक आप इन बॉक्सेस को यूं रख दें। ठीक है, आपने पूरे कमरे के अंदर यूं बॉक्सेस जो हैं वो फैला के रख दिए। ठीक है, अब आपने यहाँ आपके पास इसका डोर है और आपने इस रूम्स में इंटर होना है, तो आप इंटर होने के लिए इंटर होंगे और हर तरफ आपके पास बॉक्सेस पड़े होंगे, तो आप सोचेंगे कि मैंने अगर ये वाला बॉक्स इसके जो बैक एंड के ऊपर है इसको मैंने लेना है, तो हो के नहीं गो ओवर देयर एंड आई कैन ग्रैब इट। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपने डेटा को रख रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से रख रहे हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या वो आपके पास डेटा इस फॉर्म के अंदर है कि whenever you need modify और अपडेट इट, तो आप उसको रिट्रीव कर सकें। आपके पास जो सिर्फ ये नहीं है कि आपने चीज़ों को उठाया, इंफॉर्मेशन को उठाया और एक जगह पे रख लिया। मतलब आपको बताने का ये है कि if you are placing a information or a data somewhere, then it is necessary for you to arrange it in a good way so that whenever you need it, you can get it. आपके पास there are different companies at the moment who are keeping the data of their users, and some of the example is Facebook, Telecom, and Amazon. These companies are just getting the keeping the data of users, and they are always trying to get it whenever they need it.
तो आपके पास DBMS में आप वो डेटा रखते हैं यूजुअली जो आपके पास इंटर रिलेटेड होता है। एक लाइक आपके पास अगर स्टूडेंट का डेटा है तो आप किसी यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है और वो कहता है कि वो स्टूडेंट वहां से ग्रेजुएट कर गया एंड आफ्टर मैनी years he came back and he asked from the administrations to get some of his certificate। तो वो सर्टिफिकेट उसको कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? डेफिनेटली उसको कोई ना कोई उन्होंने रोल नंबर असाइन किया होगा, उस टाइम उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो जस्ट दे विल पुट देयर registration number in their database and DBMS will get all the information related to that student। तो आपके पास इसी तरह अभी अगर आपके पास बेशक आप स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और आप लेकिन आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये यूनिवर्सिटी के DBMS सिस्टम में स्टोर होगी। लाइक कि आपके पास ये इस टाइम उनके पास 3 टेबल हो सकते हैं। लाइक कि अगर मैं आपके पास दोबारा से अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करूं तो आपके पास देखिए आप एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है और पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आपके पास उसमें डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स हैं और हर टेबल जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसा कि आपके पास यहाँ पे एक टेबल होगा जिसके अंदर आपके पास यूजर का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट जो है वो मेंशन होता है। ठीक है, उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसका डिपार्टमेंट कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अगर और इसी तरह आपके पास एक और डेटाबेस पड़ी होगी जिसके अंदर जो डेटा होगा उसके अंदर आपके पास रोल नंबर हो सकता है, आपके पास स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो हो सकता है, स्टूडेंट्स ने कितने उस सब्जेक्ट्स में मार्क्स गेन किए हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, इसका भी एक टेबल हो उस डेटाबेस के अंदर। और आपके पास ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने चेक करना है कि स्टूडेंट का की पर्सनल इंफॉर्मेशन कि वो उस स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस कहाँ क्या है, तो उसमें भी आपके पास जो है वो देयर वुड बी अनदर टेबल जो कि आपके पास स्टूडेंट के नेम रोल नंबर के साथ और स्टूडेंट के उसमें उसका एड्रेस होगा, उसमें उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मुझे रोल नंबर 1 है जिसका नाम कोई ABC है और मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास यहाँ पे पड़ी हो सकती है और वो स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मैं अगले टेबल से ले सकती हूँ कि वी कैन गेट इट कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसमें उसने कितने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। प्लस आई कैन आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन डेट कि जो विच सब्जेक्ट ही इज रीडिंग एट द मोमेंट उसमें उसको वो सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। और इसके अलावा अगर मुझे इसी स्टूडेंट की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए फॉर टू कॉन्टेक्ट हिम लाइक फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप तो आई कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम एन अदर टेबल। तो बेसिकली वन स्टूडेंट हैज इंफॉर्मेशन इन ऑल टेबल्स, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक इंटर रिलेटेड डेटा है, इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसको कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास बेसिकली जो DBMS होता है उसके अंदर कलेक्शन होती है इंटर रिलेटेड डेटा की कि आपके एक चीज के बारे में आप जितनी चाहे इंफॉर्मेशन जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस DBMS आपके पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होगा। जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे देन यू ऑल विल कम टू नो वेरी इजीली कि हाउ वी आर एक्सेसिंग आवर डेटा। DBMS contains information about a particular enterprise. Like I told you, give you an example of a student. Like if you are okay, class. If I will, my meeting time will be end. Then you all will join from the same link again. Okay.
and DBMS provide an environment basically which is both convenient and efficient to use. अब आपके पास in every department there is a database system is going to be used over there. If you will talk about banking, then you can see all transaction. Like if अगर एक क्लाइंट जाता है और वो उसने अपने अकाउंट में कोई उसमें से मनी ड्रॉ करनी होती है या डिपॉजिट करनी होती है, ही जस्ट नीड टू गिव हिज अकाउंट नंबर, और वो उस अकाउंट नंबर से आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसका अकाउंट जो होता है वो अपडेट कर लेता है. अगर उसको वहां से अपनी कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर इस DBMS के थ्रू हो जाती हैं. इसी तरह मैंने आपको यूनिवर्सिटीज की एक एग्जांपल दी. आपके पास एयरलाइंस कंपनीज हैं which are used to be use a DBMS system for the reservation and schedule their flights. आपके पास सेल्स में कस्टमर कौन सा कस्टमर है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करता है रूटीन में, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट ओवर देयर. हमारे पास अगर मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल्स दूं, लाइक फेसबुक आपके एक ऐसा इस टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 250 करोड़ यूजर्स आर गोइंग टू बी यूज द फेसबुक, एंड फेसबुक इज हैंडलिंग ऑल द डेटा वेरी एफिशिएंटली. आप देखें ना कि आपको जस्ट यू नीड टू गिव हिम द यूजर नेम एंड पासवर्ड और आप उसके साथ फ्रीली कनेक्ट हो जाते हैं. और आपको अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो कुछ भी अपलोड करना होता है या कुछ भी रिट्रीव करना होता है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली. लेकिन आपको मैं इसमें एक बात बताती जाऊं कि आपके पास ये अब आप अक्सर सोचते होंगे कि लाइक हम कहते हैं कि मार्क ज़करबर्ग इज अ रिचेस्ट मैन. व्हाई ही इज गेटिंग richest man? Either he is not getting any payment for making an account. तो बेशक वो आपके अकाउंट बनाने के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके पास वो आपका डेटा शेयर करने के पैसे लेता है कंपनी से. तो डेटा शेयर के जैसे कि मिसाल के तौर पे आप में से कोई स्टूडेंट वेंट टू फॉर एन इंटरव्यू एंड द कंपनी who is taking your interview also want to come to know that, like if you are saying over there I am used to read books, I am used और अपनी हॉबीज के अंदर मैं बुक रीडिंग करता हूँ या मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उसको डबल चेक करने के लिए इट कुड बी पॉसिबल it will ask Facebook to share your data so that he can check your activity on the Facebook and then come to know what type of data and that what type of activities you are doing on the Facebook. तो वो उससे आपके झूठ और सच का भी अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं. तो इसके अलावा और भी आपने देखा होगा, ये तो खैर एक एग्जांपल थी, इसके अलावा भी आपके पास कंपनीज जो होती हैं, लाइक अगर आप देखिए अक्सर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं फ्रिक्वेंटली, लाइक अगर आप कपड़ों ने ब्रांड्स के कपड़े देख रहे हैं, शूज देख रहे हैं, तो आपके फेसबुक के साइट पे भी एड्स जो है वो उन्हीं चीजों की आने लग पड़ती है. क्यों आती है? क्योंकि वो भी डेटा शेयर करते हैं. ठीक है, वो उनको पता चल रहा होता है कि जो यूजर है उसका इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है, तो वो उसी इंटरेस्टिंग एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास शेयर करता है और उसी को पॉप अप कर देता है आपके पेजेस के ऊपर, ताकि आप जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेते हुए उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज करें. तो इन सारे प्रोसेस के अंदर ये नहीं हम इग्नोर कर सकते कि सिक्योरिटी इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर. ये इट डजंट मीन कि Facebook or either other companies are going to be share every data to the other companies, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आपके पास प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं इन द मीन टाइम. although most of data are gonna be shared, लेकिन हर तरह का डेटा शेयर नहीं होता. जैसा कि अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये इट डजंट मीन कि वो आपका अकाउंट नंबर या आपकी बाकी की डिटेल्स जो हैं वो भी दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करने लग पड़े, तो वो तो फिर आपका अकाउंट ही हैक हो जाएगा और आपकी जो यू कैन गेट अ ग्रेट लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है. हालांकि उनके पास ये नहीं कि वो शेयर ना करें, तो ये और बात है. अदरवाइज दे हैव दैट. लाइक आई रिमेम्बर कि वन डे आई वाज रीडिंग a statement from the
Facebook CEO, the Indian guy, I think his name is Sandeep, I'm not much sure about it. तो उसको जब अमेरिकन सेनेट ने बुलाया था तो दे वाज आस्किंग दैट के आपके पास हर किस्म का डेटा मौजूद होता है, लाइक यू कैन आल्सो सी द अकाउंट डिटेल्स एंड द ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ योर यूजर। तो उसने कहा था कि जी बिल्कुल हम उनको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर तो ये यूजर की प्राइवेसी इशू जो है उसमें डिस्टर्बेंस है और क्या कहते हैं आप इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, हम डेटा वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने एक प्राइवेसी और शेयरिंग की गाइडलाइंस जो है वो डिक्लेयर की हुई हैं, जिसके वाइस हम कंपनीज को जब डेटा बेचते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी जा सकती है और कौन सी जो है वो नहीं दी जा सकती। तो ये तो एक वो ओवरऑल व्यू था। तो बेसिकली जो है वो आपके पास जो हम डीबीएमएस की बात कर रहे थे, तो मैं सिर्फ इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये कहूंगी कि ऐसा डीबीएमएस इज बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजर्स को एनेबल करते हैं टू एक्सेस डेटाबेस, टू मैनिपुलेट डेटा, टू प्रेजेंट डेटा और आइदर टू रिपोर्ट ऑफ डेटा। तो आपके पास नेक्स्ट पर्पस डेटाबेस सिस्टम के अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आपके पास यू ऑल नो वेरी वेल कि इन प्री अर्ली डेज बेसिकली आपके पास द डेटा वाज आल्सो मेंटेन लाइक द वे व्हिच इज मेंटेनिंग टुडे, बट द थिंग इज दैट देयर वाज अ फाइल बेस्ड सिस्टम। आपके पास अगर यूनिवर्सिटीज अभी ऑनलाइन डेटा रख रही हैं या अभी उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रीवियस स्टूडेंट्स का डेटा जो था वो मेंटेन नहीं किया जाता था, उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता था, वो किया तो जाता था, लेकिन देयर वाज अ फाइल बेस्ड सिस्टम बीइंग टू बी यूज्ड ओवर देयर। तो वो फिर फाइल बेस्ड सिस्टम के से क्या होता था कि आपके पास डेटा के एक्यूरेट होने के लिए होना और उसकी रिडंडेंसी का जो फैक्ट्स था वो मौजूद रह जाता था। मिंटू, क्या हो सकता है कि लाइक अगर आप में से किसी शरोज का डेटा जो है वो एक जगह पे मौजूद है, तो आपके पास सेम डेटा की इंफॉर्मेशन एक और फाइल के अंदर मौजूद है, लेकिन वहां पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर गलत हो या वहां पे उसका डिपार्टमेंट का नेम गलत हो, तो इस किस्म की भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी और इसी किस्म की पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी कि एक ही पर्सन का डेटा जो है वो यू कैन गेट इट मोर देन वन प्लेस। तो इस किस्म के फाइल बेस्ड सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे उसको डीबीएमएस ने कवर किया। फिर आपके पास लाइक अगर एक स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि अपना प्रीवियस अपना सर्टिफिकेट लेने आता है, तो आप उसको जस्ट आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं अपने सिस्टम के अंदर और आप उसका डेटा जो है वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो फाइल बेस्ड सिस्टम होता तो आपके पास डेटा को एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल होता है और फिर डेटा को आइसोलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि डाटा जो है वो मुख्तलिफ फाइल्स में मौजूद होता है, मुख्तलिफ फॉर्मेट में मौजूद होता था, तो इसलिए उसको जो है वो आइसोलेट करना भी मुश्किल होता था। और प्लस आपके पास it was also hard to add new constraint to change the existing one, कि आपके पास जो पहले का डेटा था उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना भी मुश्किल होता था। लाइक एक टेबल का कॉलम आपने एक पेज के ऊपर बना लिया तो उसमें एक नया कॉलम ऐड करना भी मुश्किल होता था। तो हमारी मीटिंग का टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आई विल मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल यू पीपल दैट टू प्लीज रीजॉइन मी विद द न्यू लिंक। थैंक यू। जी मैम। Okay, so we were discussing about the purpose of database system, why we were in need of that, and I was telling you about the basically using the file-based system. There was some failure which also may leave the database in inconsistent state with partial update carry out. Like it also possible that कि आपके पास आप फाइल बेस्ड सिस्टम को जो है वो आप जब उसको अपडेट करते हैं तो आपके पास पूरा अपडेट नहीं होता। कैसे, मिसाल के तौर पे आपने फंड्स ट्रांसफर करने हैं एक अकाउंट से
अदर अकाउंट और आपके पास या तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता था या वो कंप्लीट नहीं होता था. तो देयर वाज आल्सो अनदर प्रॉब्लम विद द फाइल बेस्ड सिस्टम. फिर आपके पास ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि देयर आर मोर देन वन यूजर who is going to update or who is going to be get the data in same time. तो आपके पास जब वो सेम टाइम में मल्टीपल यूजर आर गोइंग टू बी एक्सेस द सेम डेटा, तो इट आल्सो बी पॉसिबल दैट देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी could be find in that. Like if two people are reading a balance of a transaction in the same time, then it could also be possible कि आपके पास जो है वो एक के पास अपडेटेड डेटा डिफरेंट आ रहा हो और दूसरे के पास डिफरेंट आ रहा था. फिर प्लस आपके पास वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी था. सिक्योरिटी प्रॉब्लम लाइक कि अगर आपके पास एक बैंक की एग्जांपल लूं कि देयर इज अ account holder which and every information of regarding the account holder is saving in a place, और वो अकाउंट होल्डर जो है वो आपके पास जब उसकी इंफॉर्मेशन किसी और के हाथों लग जाए तो वो उसके अकाउंट डिटेल्स और उसका बैलेंस चेक कर सकता था. तो क्योंकि उसको उसके लिए कोई यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं चाहिए होता था. So that was all the basically problem due to which we use the database system to solve our problems. अब next आपके पास आता है कि when you are placing a data in somewhere, then basically there are different view levels. One is physical level, second is logical level, and then the view level. Physical level के अंदर आपके पास ये डिस्क्राइब होता है कि आपने डेटा किस तरह से रखा हुआ है. आइदर इट इज रिलेटेड टू द कस्टमर और यूजर, कि आपने उस डेटा को किस तरीके से रखा, इससे इसका यूजर जो कि फ्रंट एंड पे यूज कर रहा होगा उससे कोई लिंक नहीं होता है कि आपने डेटा को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है. सेकंड आपके पास जो है वो आता है लॉजिकल लेवल. लॉजिकल लेवल के अंदर आपके पास डेटा जो है वो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर हुआ होता है और उसका रिलेशन जो है वो आपके पास डिफाइन किया होता है. लाइक आपके पास अगर आपने किसी कस्टमर का डेटा वहां पे सेव किया हुआ है तो आपने उसके अंदर डिफाइन किया होता है कि आपके पास जो नेम है उसका डेटा फॉर्मेट क्या है, उसके स्टेट का, उसकी सिटी का, कौन सी चीज किस डेटा फॉर्मेट के अंदर है. ठीक है. नेक्स्ट एंड द एंड एज द व्यू लेवल, जो कि आपके पास एंड यूजर देख रहा होता है. ये व्यू लेवल in which the application programs hides details of all the data types. आपने लाइक के अगर आप ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और अपने सब्जेक्ट्स की या टीचर्स की डिटेल आपने हासिल की है तो उसके अंदर ये नहीं बताया गया होगा कि आपका जो हमने नेम था वो हमने उसकी डेटा टाइप क्या थी, आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी डेटा टाइप क्या थी. यू जस्ट गेट द information about the subjects and the other thing. I don't know what's the problem with Amna Ahmad. She is unable to join us. तो ये सारे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. आपके पास ये उसी का एक डायग्राम है जिसमें सबसे एंड पे आपके पास फिजिकल लेवल है, ये आपके पास एक डीबीएमएस सिस्टम है का आर्किटेक्चर, ये उसका लॉजिकल लेवल है और ये आपके पास व्यू लेवल है जो कि एंड यूजर देखता है. ही इज नॉट कंसर्न अबाउट these two levels. ये सिर्फ राइट्स जो होते हैं ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को होते हैं. उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आपके पास इन ओवरऑल व्यू विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट कि बेसिकली क्या है, ये आप हैं यूजर और ये आपकी डेटाबेस यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ी हुई है. if someone is getting if you or any of the university employee want to get the information from this database, then what he will do, he will just make a request through the DBMS to the database. यानी कि वो DBMS के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा. डीबीएमएस क्या करेगा, डीबीएमएस विल सर्च इन द डेटाबेस. लाइक इफ a user is putting their registration number, then he need a DBMS. He will enter the registration number and ask that to retrieve all of my information. DBMS will search in the database and will get the information. When he will retrieve the information, he will send to the DBMS and DBMS will return all the information to the user. तो ये एक overall व्यू है इंटरेक्शन का बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस थ्रू द डीबीएमएस. अब आपके पास डीबीएमएस के अंदर नेक्स्ट आता है
RDBMS. Basically, RDMS is the type of database and management system, and it is stand for relational database management system or relational data. आपके पास basically there are different type of DBMS at the moment. There is a hierarchical network, object oriented and relational. आपके we will study all some of them in your course. तो सबसे पहले today we have to discuss the RDBMS system. RDBMS system is basically, it is called the relational because I told you already in this example. I gave you an example over here, like information about a student कि आपके पास यहाँ पे different tables हैं और हर table एक दूसरे के साथ related है, ठीक है। तो यानी कि ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं। आपके पास अगर एक इंफॉर्मेशन है तो दूसरे के साथ आप इस टेबल से इंफॉर्मेशन चाहें तो इस टेबल की ले सकते हैं, यहाँ से इसकी ले सकते हैं, इसमें कुछ चाहिए आपको तो वो इससे ले सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके पास एक RDBMS थ्रू के इसके जरिए जो है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो रिलेशनल बेस है, ठीक है। अब आपने इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करना है, उसके लिए डिफरेंट जो रिलेशनल DBMS सिस्टम यूज हो रहे हैं आजकल मार्केट में, दे आर SQL, MySQL, Oracle, IBM and Microsoft Access are all based on the RDBMS. और आपके पास RDBMS सिस्टम जो था ये बेसिकली इसकी एक मैथमेटिक्स सेट्स ऑफ थ्योरी की बेस के ऊपर ये वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है कि क्या कर बेसिकली इसके अंदर आपके पास जो डेटा स्टोर होता है वो एक सिंपली मींस दैट आपके पास डेटा को आप एक टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स के अंदर लिखते हैं। अभी हम सिंपल इसको रोज और कॉलम कहेंगे, नेक्स्ट जाके मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट द बेसिकली specific words are going to be used in DBMS system for rows and columns. Relation database is commonly used database. It contains number of tables and each table has its own primary key. And what does mean is primary key? If you will see in the whiteboard, then there is a one key which is through which we can relate to another other table, और वो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था। यहाँ पे भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर था, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये बेसिकली हमारे पास एक प्राइमरी की है। हम इस प्राइमरी की के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू you can access this table, you can access this table, you can access to this table. तो आपके पास वो एक यूनिक और प्राइमरी की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास में या एक यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रेशन नंबर द मोर देन वन स्टूडेंट हैज द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसलिए आपके पास उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं बिकॉज इट्स अ यूनिक की जिसके थ्रू वी कैन गेट a specific data of a specific person and there is a less chances of redundancy in that data. तो आपके पास RDBMS में आपने टेबल्स के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया एंड यू कैन एक्सेस दैट एज वेल। आपके पास सब डॉक्टर एफी कॉड जो थे वो फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई किए थे डेटाबेस के मॉडल्स के ऊपर, जिसमें उस प्रॉब्लम से आपके पास डेटा की इंटीग्रिटी यानी कि वो कितना आपके पास उसकी एक्यूरेसी उसका रेट क्या है और डेटा के रिपीट होने के यानी कि रिडंडेंसी चांसेस जो थे उसका प्रॉब्लम जो था वो काफी हद तक सॉल्व हो गया। तो आपके पास ड्यूरिंग 1970 to 1972 a paper was presented with the name of a relational model of data for large shared database that contains the 12 rules, और उन 12 rules की बेस के ऊपर डॉक्टर EF कोड ने आपके पास RDBMS के मॉडल को इन्वेंट किया था। RDBMS क्यों इम्पोर्टेंट है? RDBMS के इम्पोर्टेंट होने की वजह से ये है कि एक तो हमारे पास इसको यूज करना बहुत इजी है क्योंकि डेटा जो था वो हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में मौजूद था, कॉलम से रो थे, वी कैन एक्सेस इट वेरी इजीली, वी कैन इवन दो सिक्योर आवर डेटा वेरी इजीली। लाइक if you have a table of like customers account number and account balance, we can hide the sensitive columns very easily. ये आपके पास ये जरूरी नहीं है कि लाइक अगर आपके पास एक अकाउंट है, आपके पास एक पर्सन जो है उसने ये चेक करना हो कि आपका फला बैंक में अकाउंट
अकाउंट है कि नहीं, तो उसके पास उस अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है उसकी इंफॉर्मेशन भी चले जाए, तो वी कैन पुट सम terms and condition on that कि what type of data the end user can see and what type of data he cannot see. नेक्स्ट आपके पास एसक्यूएल स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसके लिए यूज की गई, जो कि बहुत इजी है, एंड इफ यू विल स्टार्ट टू नो अबाउट इट देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इजी. लाइक आप एक ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर अपने डेटा को जो है वो इजीली रिट्रीव कर सकते हैं. डेटा की इंटीग्रिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी डेवलपमेंट, उसकी सपोर्ट, ऑल द एस्पेक्ट्स आर वेरी इजीली डन बाय RDBMS सिस्टम्स. इसलिए RDBMS सिस्टम जो था वो काफी पॉपुलर था, ऑल्दो कि अब बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो इसके अलावा यूज किए जा रहे हैं. अब हमने टेबल्स की बात काफी की, तो टेबल्स बेसिकली हैं क्या? इस टेबल्स के अंदर आपके पास रोज और कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर आप रिलेशन फाइंड करते हैं एक टेबल का दूसरे टेबल के अंदर. और and also it could be possible that the both tables have different information. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस टेबल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है, और इस टेबल के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन we can easily reconnect or relate all these tables with each other. तो आपके पास इसको कन्वर्ट करना, इसमें डुप्लीकेट को रिमूव करना, ऑल द थिंग्स आर डन वेरी इजीली. यहाँ पे एक वर्ड टपल यूज हो रहा है. टपल मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्या है. ये आपके पास एक टेबल की एग्जाम्पल है जिसके अंदर आईडी, नेम, एज और कोर्स के बारे में बताया हुआ है. और इस टेबल के अंदर बेसिकली इन स्टूडेंट्स का सना, आदली या शानजे जो हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है. नेक्स्ट आपके पास आता है डोमेन. क्या होती है डोमेन? आपके पास बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स. आप इन एक यानी कि जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेबल में फील्ड कहते हैं ना, इसको हम फील्ड को अपने DBMS में डोमेन कहते हैं. ठीक है. आपके पास स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट टेबल है, तो उसके अंदर उसकी डोमेन कौन सी होंगी? ये आईडी उसकी डोमेन है, नेम उसकी डोमेन है, एज, कोर्स जो है ये उसकी डोमेन है. हम डोमेन का वर्ड भी यूज करते हैं, हम फील्ड का वर्ड भी यूज करते हैं. ये थोड़ी सी आपको होनी करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जब हम नेक्स्ट इसको यूज कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड जो है वो किस पर्पस के लिए जो है वो यूज किया गया है. नेक्स्ट आपके पास अब मैं रैकेट का वर्ड यूज करूं, मैं रो का वर्ड यूज करूं, या मैं टपल का वर्ड यूज करूं, तो यू ऑल शुड कीप इन माइंड कि बेसिकली दिस इज कॉल्ड टपल. ये आपके पास 1 सना 20 कंप्यूटर जो है ये एक टपल है. ठीक है. यानी कि एक रो को हम एक टपल कहते हैं, लेकिन हम रो का वर्ड जो है वो DBMS में यूज नहीं करते हैं, हम टपल यूज करते हैं. If someone is asking from you that you have a table, could you please explain me what is domains you have used in that table and what is the tuple, what type of tuple you have introduced in that table. तो आपको पता होना चाहिए कि वो डोमेन किसको कह रहे हैं या वो टपल किसको कह रहे हैं. तो एक रो आपके पास जो होती है वो एक टपल कहलाती है. और यहाँ पे फील्ड जैसे ये 2, आदिल, 20, मैथमेटिक्स, दिस ऑल आर द फील्ड इन अ टेबल. जिस यानी कि एक सेल जो होता है टेबल का वो एक फील्ड कहलाता है. ठीक है. ये इंडिविजुअल पार्ट है. जैसे हमने टपल जो है वो, अगर मैं टपल की बात करती तो टपल के अंदर ये सारी ही लाइन आनी थी, लेकिन पूरी रो आनी थी. लेकिन अगर मैं फील्ड की बात करूंगी तो आपके पास सिर्फ इंडिविजुअल सेल्स जो होंगे वो आपके पास फील्ड होंगे. इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग इट practically and we are asking DBMS to get a data, then we have to explain it basically what type of data we need and from where we need it. तो हम उसके लिए जो वर्ड्स यूज उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी. नेक्स्ट आपके पास कॉलम होते हैं. कॉलम आपके पास वर्टिकल है, इन दैट वर्टिकल होते हैं टेबल के अंदर, और उसके अंदर ऑल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि उसकी डोमेन के अंदर एक्सपेंड की जाती है. लाइक इट हैज अ डोमेन ऑफ, हाँ एक और वर्ड भी हम इसके लिए यूज करते हैं कॉलम्स के लिए, एट्रीब्यूट्स. क्योंकि हम रो और कॉलम का वर्ड जो है वो नॉर्मल टेबल का यूज करते हैं, लेकिन जब आपने DBMS में यूज करना है तो आपने इसको एट्रीब्यूट्स कहना है. और एट्रीब्यूट्स क्या होते
होते हैं बेसिकली उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टपल्स की, जो कि एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में या फील्ड्स फॉर्म के अंदर आपने रिप्रेजेंट की होती हैं। लाइक कि अगर आपके पास यहाँ पे ये कोर्स एक डोमेन है, आपके पास ये एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डिग्री और कार्डिनलिटी। आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितने भी एक टेबल के अंदर यूज हो रहे हैं, जैसा कि ये टेबल है, इसके अंदर आईडी, नेम, एज और कोर्स, देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू बी यूज इन अ टेबल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये अगर मैं आपसे पूछूंगी कि उस टेबल की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे कि उसकी डिग्री 4 है, क्योंकि वी आर यूजिंग 4 एट्रीब्यूट्स इन दैट टेबल। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आती है कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ रोज आपने जितनी उस टेबल के अंदर यूज की होती हैं वो उस टेबल की कार्डिनलिटी होती है। नेक्स्ट आपके पास एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंस एंड स्कीमा। इंस्टेंस और स्कीमा क्या होता है? स्कीम बेसिकली जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे C++ वगैरह ये वो हैं, उसमें जो आप जैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ना, कि लाइक आपके पास इंट है तो इंटीजर को शो, इंट ए है तो वो आपको एक इंटीजर वैल्यू शो कर रहा है, इसी तरह इनका मतलब भी होता है। स्कीमा बेसिकली क्या होता है, आप स्कीमा के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं द वे आप जिसके अंदर आपने डेटा को जो है ऑर्गेनाइज किया होता है। ठीक है, आपके पास डेटा का स्ट्रक्चर किस तरह का है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा, यानी कि डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, एंड इट इज यूज्ड स्ट्रिक्टली टू डिफाइन द टेबल, कॉलम, इंडेक्सेस एंड रिलेशन बिटवीन द टेबल्स। कि आप इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको डिफाइन करता है कि आपका टेबल कैसा है, आपका कॉलम कैसा है, इंडेक्सेस कैसे हैं और उनका आपस में रिलेशन कैसा है। ये जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि आपके पास स्कीमा जो है वो क्या चीज है। तो आपके पास स्कीमा कुड बी फिजिकल, स्कीमा कुड बी लॉजिकल। आपके पास फिजिकल के अंदर जो है वो आप डेटाबेस को फिजिकल लेवल पर डिजाइन कर रहे होते हैं, और लॉजिकल स्कीमा के अंदर लॉजिकल लेवल पे जो डेटाबेस की डिजाइन होती है वो आपको लॉजिकल स्कीमा कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास इंस्टेंस है। इंस्टेंस जो होता है बेसिकली दैट इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, आपके पास इस मीन के आपके पास आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को आपने प्रॉपर्ली कहीं पे जो असाइन किया होता है वो आपके पास जो है वो इंस्टेंस कहलाता है। यानी कि इंस्टेंस का बेसिकली वर्ड्स होता है मतलब कि आपके पास एक चीज मौजूद है, आप उन्हें उससे रिलेटेड आपका जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो कहीं और पे कि आप उसको नीचे यूज करें। मिसाल के तौर पे आप जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, आप ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, अब हर दफा उस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप है उसको आप अपनी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप नीचे जा रहे होते हैं तो उसको एक्सप्लेन हर टाइम नहीं करते हैं, बस आपने उस वेरिएबल को यूज कर लेना, वो उस वेरिएबल की कौन सी डेटा टाइप है दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। आपके पास नेक्स्ट फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है कि द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। इट आल्सो कुड बी पॉसिबल दैट कि you can modify the physical you can modify the database at the physical level without disturbing the logical level of the database। तो आपके पास इन जनरल जो है वो आपके पास वेरियस लेवल्स का जो इंटरफेरेंस होता है components का that should be defined so in that way so that in some parts do not seriously influence the other। कि ऐसा ना हो कि आपने जब डेटा को डिफाइन किया you change it somewhere and the whole data is going to be changed। कि आपने एक जगह पे डेटा को मॉडिफाई किया और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी डेटाबेस के ऊपर ना आ जाए, तो इसलिए हम जब हमें इंस्टेंस और स्कीमास को जो है वो अपने डेटा जब हमने कोई रैकेट्स सेव करने हैं तो उसके अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि हमारी जिस पॉइंट को हम इस टाइम यूज कर रहे हैं हमारा सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं वही पॉइंट मॉडिफाई हो, ना कि पूरी डेटाबेस उससे डिस्टर्ब हो जाए।
that is the end of our lecture, and hopefully you all have understand all the basic things related to the database. If you have any question regarding your topic, you can ask me. मैम आई हैव एन क्वेश्चन, क्या हमें प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी इसमें या प्रोग्रामिंग का यूज है इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर? जी बिल्कुल है। हम बेसिकली वो प्रोग्राम हमें एसक्यूएल आई गेस के आई हैव टू मेक श्योर डबल चेक इट विद योर विद माय डिपार्टमेंट दैट बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीपीएमएस इज गोइंग टू बी यूज्ड नाउअडेज। मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए एसक्यूएल ही होगी, लेकिन मैं इसको एक दफा कंफर्म कर लूंगी। तो हम अपना जो फर्स्ट वीक है वो हम थ्योरी के ऊपर रखेंगे, और सेकेंड वीक में हम ट्राई करेंगे कि हमारे 1 से 2 लेक्चर जो हैं वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर हो, क्योंकि जब आप स्टेट के अंदर जब आपके पास इतना सारे टेबल्स और इतना सारा डेटा मौजूद होता है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपने उसमें से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपको उसके लिए डीबीएमएस की ही जरूरत पड़ेगी। तो इट हैज वाइड एप्लीकेशन। जी इज देयर एनी मैम 2 क्रेडिट आवर्स हैं मैम, 2 क्रेडिट आवर्स जो से हैं वो प्रैक्टिकल के और 1 थ्योरी के? जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। no problem. Is there anyone else who wanna ask some question? Then he or she can ask. Is it done? Okay, all right. Thank you so much, class, for your precious time. I just make a screenshot for the sake of your attendance. Could you please confirm me all that? Is there any other attendance system which your university is going to be used to mark your attendance? मैम व्हाट्सएप पे हमारी अटेंडेंस ले लेते थे, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी का कनेक्शन इशू आ रहा होता है, तो फिर हम अटेंडेंस जो है व्हाट्सएप पे दे देते होते हैं। Okay, all right. So for the safe reason, you can also the 27 participant can send me your attendance on the WhatsApp group, so that when I will upload it in CMS, then I will double check it. No one should be missed over there. Okay. Okay. Thank you so much, class. Yeah. Have a nice day. See you tomorrow. Allah Hafiz.